Okay, good morning all the students. Today we are meeting here for another chapter of microwave and radar engineering, that is microwave antennas, very important component of microwave communication system. Fine. So we will discuss microwave antennas in fourth sem while studying uh, communication system 1. You have already gone through some low frequency antennas, even some antennas which can be used at medium frequency or at high frequency, like Yagi Uda antenna. Okay, so that we have already become familiar with some terminology like beam width, bandwidth, radiation patterns, gain. What are all those terms related to antenna? We have already become familiar in the fourth sem. So, moving further, because the electromagnetic spectrum is having huge range, so antenna which is designed at very low frequency, that will be very tallest, tall and huge size. So that is why we are modulating the signal, and after modulating, we are reducing the height of the antenna. Fine. So obviously, high frequency antennas are small in size. When and why modulation is required? This is what we have mentioned in PC. And again, towards medium frequency, then high frequency, then very high frequency, ultra high frequency, microwave frequency. Of course, the size of the antenna is becoming small and small. Fine. So that we will discuss. And okay, let me. Fine. So antenna, in fact, it is what? It is a structure, in fact, a metallic structure, rather generally metallic object, often a wire or group of wires. एक तार भी हो सकती ज़्यादा भी, used to convert high frequency current into EM waves. ठीक है? एंड वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता, हाई फ्रीक्वेंसी करंट ਨੂੰ EM waves ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो दोनों वे हो सकते हैं, ट्रांसमिटिंग ਤੇ रिसेप्शन वे। It is capable of radiating or receiving EM waves, and their function is to couple the transmitter and receiver to the space. Obviously, देखो ट्रांसमिटिंग एंटीना तो जो सिग्नल रेडिएट ਹੁੰਦਾ, ट्रांसमिट ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ रेडिएट ਹੁੰਦਾ in the form of EM waves, ਤੇ एंटीना as a source ਹੈ ਤੇ space as a load ਹੈ। तो स्पेस की इंपीडेंस एंटीना की इंपीडेंस ਨਾਲ मैच करनी चाहिए, ਤਾਂ मैक्सिमम पावर ਜਿਹੜੀ एंटीना वालों वो ट्रांसफर होएगी टुवार्ड स्पेस। और ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਵਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 377 ਓਮ ਜਾਂ 120 ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ? देयर फंक्शन इज टू कपल दी ट्रांसमिटर रिसीवर टू दी स्पेस। और भी एक किस्म का लिंक बनता ट्रांसमिटर के रिसीवर के विच। ठीक है। और वो लिंक असी एंटीना के थ्रू बनाते हैं। सो एंटीना कैन एक्ट एज ए लिंक बिटवीन ट्रांसमिटर रिसीवर। एज वी नो दैट माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, नॉट फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पसेस। आ पॉइंट नोट करना, असी माइक्रोवेव को कम्युनिकेशन पर्पस वास्ते यूज करते हैं, ना कि ब्रॉडकास्ट वास्ते। ठीक है। हुण ये दोनों लाइनों फर्क तुहानूं नज़र आएगा। ठीक है। हैंस ओमनी डायरैक्शन एंटीनास आर नॉट रिक्वायर्ड। आ देखो अगली लाइन पता लग गया ना। देखो ब्रॉडकास्टिंग का मान लो सारे पासे इक्को जिहा है ना, जो उत्थे ओमनी डायरैक्शन एंटीना की जरूरत पैंदी है। पर जो असीं पर्टिकुलर डायरैक्शन च कम्युनिकेशन करनी होवे, सानूं माइक्रोवेव एंटीना की जरूरत पैंदी है, हाई फ्रीकुएंसी, जिहदा रेडिएशन पैटर्न शार्प होवे। ठीक है ना। इस करके माइक्रोवेव में असीं कम्युनिकेशन वास्ते यूज़ करते, ना कि ब्रॉडकास्ट वास्ते। पर जे ब्रॉडकास्ट वास्ते चाहिए उत्थे ओमनी डायरैक्शन एंटीना चाहिए। सो माइक्रोवेव में ओमनी डायरैक्शन एंटीना की जरूरत नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, बिकॉज नो ब्रॉडकास्टिंग इज डन एट दिस फ्रीकुएंसी। ठीक है। क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी की ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते असीं। एन omnidirectional antenna is such an antenna which radiates uniformly in all direction। तो सारे डायरेक्शन के इक्को जिहा रेडिएट करना, हैंस डायरेक्टिविटी ऑफ इट्स रेडिएशन पैटर्न इन वट डायरेक्शन कि खास जे सारे पासे इक्को जिहा कीता, डायरेक्टिविटी किसी खास दिशा के पुअर ही होनी। मतलब क्योंकि सारे पासे इक्को जिहा है, जे वो पर्टिकुलर इक्को डायरेक्शन च रेडिएट करता
जिदा रेजोनेंट एंटीना की गल करते हैं, फिर सानू ਜਾਂ नॉन रेजोनेंट एंटीना की गल करते हैं, नॉन रेजोनेंट तो एक डायरैक्शन च रेडिएशन जी मैक्सीमम है, फिर असीं कहांगे भी उसकी डायरैक्टिविटी ज़्यादा है। तो ऐस जिहड़ा एंटीना सारे पासे इक्को जिहा रेडिएट करता ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ परमात्मा ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪੋਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ परमात्मा ਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ठीक है, माइक्रोवेव एंटीनास आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन, सो दे नीड टू बी हाईली डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि जो कम्युनिकेशन करनी है उन्होंने डायरेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाईली डायरेक्शन होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ माइक्रोवेव एंटीनास, ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीना शुड बी हाईली डायरेक्टेड, दोनों ही हाईली डायरेक्टेड होने चाहिए, यानी डायरेक्टिविटी उन्होंने ज़्यादा होनी चाहिए है। फिर असी अपने आप में सवाल करते हैं कि माइक्रोवेव एंटीना हाई डायरेक्शन होने क्यों चाहिए, क्यों जरूरत पैंती माइक्रोवेव एंटीना, वाई माइक्रोवेव एंटीना नीड टू बी हाईली डायरेक्शन। ਆਪਾਂ कुछ रिक्वायरमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड करैक्टरिस्टिक्स। माइक्रोवेव रिसीवर्स बिकम नॉइजर than that of low frequency receivers due to induced and shoot noise effects in tubes and transistors during the transmission section। इदा क्यों किया, क्योंकि रिसीवर जिहड़ा आ वो इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है, ईवन ट्रांसमीटर भी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इलैक्ट्रॉनिक सर्किट के जिहड़ी स्विचिंग है वो किस फ्रीकुएंसी पर फिर होएगी, जे वो ट्यूबा या ट्रांजिस्टर लगे होगी माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी पर, और माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी पर स्विचिंग बड़ी फास्ट होएगी, जिहदे करके इंड्यूस ते शूट नॉइज़ जिहड़ी आ इलैक्ट्रॉन्स दे विच पैदा होएगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सेक्शन। दस टू टेक केयर ऑफ दीज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, क्योंकि नॉइज़ पैदा होगी, हायर एंटीना गेन्स आर रिक्वायर्ड। हुण जे नैचुरली जिद्दां क्लास दे विच टीचर पढ़ाउंदा ते पिछों आवाज़ां आई जाण, जे तां टीचर की आवाज़ स्लो आ, फिर जी क्लास के जोड़े स्टूडेंट्स आवाज़ कर रहे हैं वो डिस्टर्बेंस मनी जाएगी। जे टीचर की आवाज़ ही ज़्यादा तो माड़ी मोटी जी आवाज़ स्टूडेंट्स की आती दबी जाएगी। आप पॉइंट नोट किया? हेलो हेलो हेलो, हाँ, यदा मतलब ये आ कि जे ट्रांजिस्टर ते ट्यूबा करके माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी के जोड़े रिसीवर्स आ जे नॉइज़ ही बनते हैं, कोई गल नहीं, क्योंकि उन्होंने लिमिटेशन है ट्यूब या ट्रांजिस्टर की हाई फ्रीकुएंसी के स्विचिंग से उन्होंने नॉइज़ पैदा करनी है, एंपलीफायर में भी नॉइज़ पैदा हो सकती है। पर फिर आप उस नॉइज़ को कितना आप दबीए, कंपन आप की करते हैं, आप एंटीना लेने जो गेन बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दस टू टेक केयर ऑफ दीज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हायर एंटीना गेन्स आर रिक्वायर्ड। समझ आ गई? हेलो हेलो, बोलो बोलो, स्टूडेंट्स बोलते नहीं, मैं देखा। सो सानू ज़्यादा हायर एंटीना गेज की जरूरत रही है, सो दैट सिग्नल एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर मे बी एज लार्ज एज पॉसीबल। जो एंटीना का गेन ज़्यादा होगा सानू सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। आ साडे को स्टैंडर्ड रिलेशन है, एज फ्रीकुएंसी इंक्रीज फ्रीकुएंसी जिदा बढ़ती है फिजिकल साइज जो डिवाइस का छोटा होंदा रहिंदा। तो इस फार्मूले असीं डिसाइड करते पीसी में पढ़ा, जिदा सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एफ जी ऑपरेटिंग फ्रीकुएंसी है, लैम्डा जी वेवलेंथ असीं जे इनू भी चार ना बन लिया, इनू भी चार ना बन लिया। लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, डिसाइड द हाइट ऑफ एंटीना और साइज ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी ऑब्वियसली। हुण माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ घट है तो एंटीना कंपोनेंट का साइज छोटा हो जाना, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज पावर डिसिपेशन एंड हैंस द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी तो फ्रीकुएंसी बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ घट जाने आ, और किसी भी कंपोनेंट का साइज जो वेवलेंथ डिसाइड करती है। तो जो वो साइज छोटा हो गया उतो पावर मिलने वाली वो सानू या वो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या पावर डिसिपेशन जी कैपेसिटी वो घट जाएगी। दस एंड माइक्रो फ्रीकुएंसी ड्यू टू द स्मॉलर साइज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डिक्रीज रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड माइक्रोवेव आउटपुट। गल समझ आ गई? क्योंकि हाई फ्रीकुएंसी के साइज छोटा हो जाता, वेवलेंथ वो साइज डिसाइड करती है, इस करके ट्रांसमिशन एफिशिएंसी घटती है, सानू माइक्रोवेव आउटपुट भी वो सिट्टे वजों घट मिलेगी। आल्दो हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस आर अवेलेबल, बेशक हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस अवेलेबल है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट इज वाई एंटीना विद लार्ज डायरेक्टिविटी एंड मैक्सिमम गेन इज रिक्वायर्ड एट माइक्रोवेव। बेशक कहता माइक्रोवेव डिवाइसिस जिहड़ियां हाई पावर वालियां अवेलेबल, पर वो महंगियां बहुत है, इस करके साडा असीं एक होर तरीका अपना लैंदे आ,
एंटीना ऐसा यूज़ करते हैं जिहदी डायरेक्टिविटी ते गेन ज़्यादा माइक्रोवेव फ्रीकुएंसी दे वो ले लैंदे आ, साडी प्रॉब्लम जिहड़ी आ वो ओवरकम हो जाती। सो हायर एंटीना गेन रिजल्ट्स इन हायर इफेक्टिव रेडिएटेड पावर। देखो रेडिएटेड पावर ते अफेक्टेड रेडिएटेड पावर च फर्क है, पता लग गया। अफेक्टेड रेडिएटेड पावर किदां बनदी, देखो ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਡ ਰੇਡੀਏਟਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਆ ਕਿਹਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਗੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਗੇਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਹੋਇਆ 2000 ਹੋਇਆ ਜਾਂ 10000 ਹੋਇਆ तो 10 ਜੇ 10000 ਹੋਗਾ तो 10,000 टाइम पावर ਵਧੇਗੀ, ਜੇ 2000 ਹੋਇਆ तो 2000 टाइम पावर ਵਧੇਗੀ। सो वो अफेक्टेड रेडिएटेड पावर हुई, समझ आ गई। हेलो हेलो सर हाँ हाँ जी सर। ERP मतलब ERP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ERP ਬਣਦੀ ਅਫੈਕਟਡ ਰੇਡੀਏਟਡ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੇਨ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਹੈ। ਦਸ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ GP ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਹਾਈ ERP। ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ GP ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਗੇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 तक भी वेरी करता है ना, वो डिपेंड करता उन्ने टाइम्स जी इनपुट पावर हो के वो मल्टीप्लाई बन के ERP बनता। सो बिकॉज ऑफ देयर शार्प रेडिएशन पैटर्न, शार्प रेडिएशन मान लो नैरो बीम, तो जो नैरो बीम है एंगल घट जाना स्मॉल एंगल, तो माइक्रोवेव एंटीनाज आर हाईली डायरेक्शनल एंड यूजफुल इन डायरेक्शन फाइंडिंग एज इन रडार। ओबवियसली सानू रडार तो जो हाई फ्रीकुएंसी सिग्नल ਨੂੰ ट्रांसमिट करते हैं किसी टारगेट ਨੂੰ डिटेक्ट करने वास्ते, अगर ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹਦਾ डायरेक्शनल अगर वो हाईली डायरेक्शनल होया तो ਉਹਦਾ बीम ਜਿਹੜਾ ਉਹ शार्प होएगा यानी स्मॉल एंगल ना होएगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ डायरेक्शन फाइंडिंग वास्ते ਉਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं। दस माइक्रोवेव एंटीनाज आर रिक्वायर्ड इन डायरेक्शन फाइंडिंग इक्विपमेंट सच एज इन रडार एक्सट्रा ड्यू टू देयर हाईली डायरेक्शन कैपेबिलिटी। समझ आ गई, ये ਉਹਦੀ एप्लीकेशन हो गई। In radar, antenna is moved around in a sweep to change the direction and therefore wide angle radiation is not required. ठीक है। Microwave antennas are smaller in size since their wavelength is small at microwaves, but small antenna size is several times the wavelength of the microwave. Obviously, कितना क छोटा रख लांगे फिर भी थोड़ा बहुत लेना ही पऊगा ना सानू। देखो आप जिदा जिदा लैमडा जी जिदा फ्रीकुएंसी वधी जाती है लैमडा उन्ना घटी जानी है, तो वो हिसाब न जी माइक्रोवेव एंटीना की साइज डिसाइड होना। मोर ओवर स्मॉल हाइट ऑफ एंटीना इज एडिक्वेट। अगर घट हाइट का एंटीना है वो कहता कि इज एडिक्वेट टू ऑबटेन गुड L/λ रेशो। ये मैं तुहानूं गांह दसदा हॉर्न एंटीना दे विच L/λ रेशो की हुंदी है, अज कहंदे ने टू बी डिस्कस नैक्सट इन सैक्शन ऑफ हॉर्न एंटीना है ना। तो L/λ रेशो जे वो सानू चंगी मिले सफिशेंट मात्रा, तो स्मॉल हाइट ऑफ एंटीना इज एडिक्वेट टू ऑबटेन गुड L/λ रेशो। ये मैं दसूँगा L की है लैमडा की है। अच्छा हॉर्न एंटीना दे विच all antennas operated under microwave frequencies are called microwave antennas obviously when the frequency of operation is beyond 30 megahertz। obviously देखो 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੋਸਫੇਰਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਵੇ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, CS1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। अगले चैप्टर के एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिथे स्काई वे प्रोपीगेशन थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे 3 तो लैके 30 मैगाहर्ट्ज़। जदों इस तो उपर जाना फिर सानू लाइन ऑफ साइट नूं फॉलो करना पैना। लाइन ऑफ साइट प्रोपीगेशन जिहड़ी जिहनूं असीं स्पेस वे प्रोपीगेशन भी बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन प्रोपीगेशन विल बी प्रैफर्ड। और उत्थे की करते हैं असीं प्लेनर वेव फ्रंट्स टू बी ये भी आपां डिश एंटीना च पढ़ांगे। प्लेनर वेव फ्रंट हुंदे की आर प्रैफर्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो LOS वास्ते सानू प्लेनर वेव फ्रंट्स की जरूरत पैंदी है। हुण की कहता इन ऑर्डर टू इनक्रीज द डायरेक्टिविटी एंड टू रिसीव मोर पावर विद लीस्ट डिस्टॉर्शन ऑब्वियसली। सो प्लेनर वेव फ्रंट्स आर प्रैफर्ड फॉर LOS कम्युनिकेशन। तो जे सानू डायरेक्टिविटी वध चाहिए आ, रिसीवर्ड पावर जी और रिसीवर से वध होवे, डिस्टॉर्शन घट मिले, फिर असीं प्लेनर वेव फ्रंट्स नूं प्रैफर करते हैं
ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੇਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਨਰ ਤੇ ਸਫੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ when the field components measured along a plane, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਸ, then the transmission is said to be planar wavefront। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਸ, then the transmission is said to be in planar wavefronts। otherwise when the field wavefronts measured along a circle, फर्क पता लग गया, along a plane along a circle with source at the center, इतने एक ध्यान रखना, with source at the center, सेंटर च सोर्स होना। जिदा मान लो ना आप कहते नहीं भी एक तुसी अपनी हथ जिन्हों पाम कहने ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬੋਲਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। तो कहता when the field fronts, उत्थे सीगे field components या इतने field components कह रहा, field wave fronts measured along a circle with source at the center or they are in phase, then transmission said to be in circular wave fronts। so दो तरह की transmission है, planar wave fronts दी ते circular wave fronts दी, पर असी directional antenna वास्ते planar wave fronts ਨੂੰ oftenly prefer करते हैं। टाइप्स पढ़ते हैं माइक्रोवेव एंटीना दी। हॉर्न एंटीनास ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਐਂਟੀਨਾਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੈਂਸ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਸਲੌਟ ਐਂਟੀਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਲੈਂਸ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਸਲੌਟ ਐਂਟੀਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ DTH ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਡਿਸ਼ਜ਼। ਹੈਲੋ, ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ DTH ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਂਟੀਨਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਕੀ ਨੇ? electromagnetic waves or radio waves can be radiated directly into the open space from the end of the waveguide if it is suitably excited at one end and open at the other end। मैं पहला भी कहा सी भी ट्रांसमिशन लाइन जिहड़ी आ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫ ਵੇਵ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਐਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਐਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਪੇਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ। EM waves or radio waves can be radiated directly into the open space, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? from the end of the waveguide, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਓਪਨ ਰੱਖੀਏ। radiation is much greater than obtained from the two-wire transmission line but it suffers from similar difficulty। ਜਿਹੜੀ 2-wire transmission line ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਗਾਈਡ 'ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਮੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਐਨ ਅਬਰਪਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ that is from the Z0 characteristic of the waveguide into that of the free space। ਆ ਕੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਐਂਡ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਬਰਪਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨੀ? 377 ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਔਰ ਅਬਰਪਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
समझ आ गई। वो कहता the end of the waveguide represents an abrupt transition from the characteristic impedance point of view of the waveguide and that of the free space impedance due to this radiation resulting in the neither efficient nor very direct। अब समझ आ गई, ना तो वो एफिशिएंट होणगे ना वेरी डायरेक्ट होनी, कारण क्योंकि इंपीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम आ गई। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फॉरवर्ड एनर्जी इन द वेवगाइड इज रिटेटेड एंड मच। फिर कुछ की होना, कुछ पोर्शन जिहड़ा असी एनर्जी जिहड़ी एनर्जी असी दित्ती आ इनपुट एंड वालों, ਉਹਦਾ कुछ पार्ट फॉरवर्ड एनर्जी विच वेवगाइड वाल रेडिएट हो जाएगा और कुछ वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फार एंड जिहड़ा ओपन सर्किट है, हुण ओपन सर्किट ते शॉर्ट सर्किट दोनों एंड दे विच रिफ्लैक्शन हुंदी, कारण जे ओपन सर्किट है तो करंट जीरो आ, इंपीडेंस इनफाइनाइट है क्योंकि वी Z इज इक्वल टू V अपॉन I। ते पर जिहड़ा जे इंपीडेंस फार एंड वाली इनफिनिटी आ ते सोर्स एंड वाली तो इनफिनिटी ना होई ना, इस करके मिसमैचिंग। जे असी दूजा एंड शॉर्ट कर लीए, फार एंड में शॉर्ट कर लीए, फिर वोल्टेज जीरो हो जानी है तो इंपीडेंस भी जीरो हो जानी है। पर जे फार एंड के इंपीडेंस जीरो हुई, सोर्स एंड के इंपीडेंस जीरो ना हुई, फिर भी इंपीडेंस की मिसमैचिंग, तो भी सिग्नल वापस। सो दोनों केस आइदर इन ओपन केस और इन शॉर्ट केस, दोनों केस के रिफ्लैक्शन होएगी, ठीक नहीं। फिर इस करके दैट इज ए पुअर मैचिंग। सो ओनली ये मैं तुहानूं तां गल दसी है, ओपन ड्यू टू पुअर मैचिंग जिहड़ी सिग्नल है वापस आ जाएगा। तो लाइक ट्रांसमिशन दी ओपन सर्किट इन केस ऑफ वेवगाइड इज डिसकंटिन्यूटी which matches very poorly to the space obviously। क्योंकि जो ओपन सर्किट में है तो फिर डिसकंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि ट्रांसमिशन होनी ही नहीं, कारण कि इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो रही और स्पेस नाल पुअर मैच होने करके मैक्सिमम सिग्नल जो पावर है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। मोर ओवर होर गल देखो, डिफ्रैक्शन अराउंड द एजेस, क्योंकि वैसे अब्रप्ट ट्रांजिशन है, डिफ्रैक्शन अराउंड द एजेस विल गिव ए पुअर रेडिएशन एंड नॉन डायरेक्टिव रेडिएशन पैटर्न। तो ये सारिया डिफिकल्टीज आ गई। क्यों? क्योंकि वेवगाइड का जो फार एंड आ उत्थे अब्रप्ट ट्रांजिशन है, एक करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस की प्रॉब्लम आ गई, ओपन सर्किट होने करके पुअर मैचिंग की प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल वापस आ जाएगा, इंपीडेंस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आ गई, इंपीडेंस मैचिंग की डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ गई और एजिस के अराउंड डिफ्रैक्शन होएगी, पुअर रेडिएशन होई तो नॉन डायरेक्टिव रेडिएशन पैटर्न बनेगा। तो इन्होंने सारिया डिफिकल्टीज को ओवरकम कर ले, फिर की करिए, जोड़ा वेवगाइड का मूँह आ ਉਹਨੂੰ खोल ਦਿਓ, मे बी ओपनड आउट और फ्लेयर्ड। जिदा तुसीं कीर्तन दरबार लगा ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ संगीत ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ स्पीकर लगे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ स्पीकर आ गए, ਅੱਗੇ स्पीकर हॉर्न टाइप ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ 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 हाँ जी सर, हाँ जी। ਉਹ ਬੋਲੋ। हाँ जी सर, हाँ जी बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਹੌਰਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਹਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਲੇਅਰਡ ਉਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਏ ਹੌਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ। तो फिर जानी मूँह ज़्यादा खोलने का मतलब स्पेस वाल वो कपलिंग ज़्यादा हो और उन्होंने इलैक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न एंटीना कहेंगे। सो एन ओपन एंडेड वेवगाइड इज फुली कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग जस्ट लाइक एन एंटीना। यस, जे फार एंड को असी ओपन करता, फ्लेयर्ड करता, और वेवगाइड जड़ा वेवगाइड है फिर वो एंटीना की तरह रेडिएट करेगा इन टू ओपन स्पेस इफ इट इज सूटेबल एक्साइटेड एट वन एंड एंड ऑफ कोर्स ओपन एट द अदर एंड। ठीक है। So this open-ended waveguide called horn, which increases the directivity and reduce the diffraction around the edges। समझ आ गई? जिहड़ियां प्रॉब्लम्स वो जिहड़ियां ओवरकम हो गई। वर्किंग प्रिंसिपल की मैं तुहानूं पहला हॉर्न कहंदा, व्हेन ए वेवगाइड इज टर्मिनेटेड बाय ए हॉर्न, कोई वेवगाइड है असी उहनूं हॉर्न दे नाल टर्मिनेट कीता जिहदे 5.1 ते दी अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी दैट एग्जिस्टेड इज रीप्लेसड बाय ग्रैजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਬਰਪਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ,
ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰਲੀ। मेरी गल समझ आई? हेलो हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो असी जनी फ्लेयरिंग करते हैं, ऑल द एनर्जी ट्रैवलिंग फॉरवर्ड इन द वेवगाइड विल नाउ बी रेडिएटेड। सारी एनर्जी जी वेवगाइड में ट्रैवल कर रही है वो रेडिएट हो जाएगी। शर्त की है? प्रोवाइडेड दैट इंपीडेंस मैचिंग इज करैक्ट। शर्त भी है फिर वेवगाइड जो एज एंटीना एक्ट कर रहा तो उधरों स्पेस जो एज लोड एक्ट कर रहा उन्होंने इंपीडेंस मैच होनी चाहिए है। तो इंपीडेंस मैचिंग इज करैक्ट। डायरेक्टिविटी विल आल्सो बी इंप्रूव्ड एंड रिफ्रैक्शन अराउंड द एजेस विल बी रिड्यूस्ड। फ्लेयरिंग हैल्प्स इन मैचिंग ऑफ वेवगाइड इंपीडेंस। तो जी असीं फ्लेयरिंग करते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਨੈਰੋ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਪੈਟਰਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਓਪਨ ਆਊਟ ਫਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਪਨ ਅਪ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ? ਓਏ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। हाँ जी सर। हाँ 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 जी सर। हाँ। टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਸੈਕਟੋਰਲ ਈ ਹੌਰਨ, ਸੈਕਟੋਰਲ ਐਚ ਪਲੇਨ, ਈ ਪਲੇਨ, ਐਚ ਪਲੇਨ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਤੇ ਕੌਨਿਕਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ। ਸੈਕਟੋਰਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਚ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ, ਸਮਝੋ ਆ ਇਦਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਟੱਚ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? तो ये डायग्राम बना के देखने। ई प्लेन सेक्टोरल विद फ्लेयरिंग एंगल थीटा। आ फ्लेयर आ इहदा मूँह खोलता ना इदां, आ वेवगाइड दियां आर्म्स ने मूँह खोलता। हुण आ देख जिहड़ी आ ब्रॉडर डिमेंशन सी आ हो गई ते नैरो डिमेंशन आ हो गई। उदां दा नैरो डिमेंशन बी आ सीगी, इधर आ बी डैश बन गई। समझ आ गई? इत्थे ए सी, ए डैश बन गई। गल पल्ले पै गई। ते किन्ने एंगल ते मूँह खोलिया? और फ्लेयरिंग एंगल होया। किस एंड तो किस एंड तक होया? आ एल हो गई, ये लेंथ हो गई। इनू फ्लेयरिंग लेंथ भी कहते हैं, ठीक है? ये ई प्लेन च है, आ एच प्लेन च। इत्थे एच लिखना सी, इत्थे करैक्शन करनी, एच लिखना। हुण एच प्लेन दे विच तुसीं नोट करो आ ब्रॉडर डिमेंशन ए वाला होना, ए आ ते बी वाला नैरो होना। ओ देखो ध्यान रहे। और आ फ्लेयरिंग लेंथ हो गई ते आ फ्लेयरिंग एंगल हो गया। क्लीयर होई? ये ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न है, ये एच प्लेन सेक्टोरल एंगल हॉर्न है विद फ्लेयरिंग एंगल थीटा। क्लियर होगा बच्चों? हाँ हाँ जी सर। तुसी बोलते नहीं यार, बहुत स्लो बोलते, फास्ट बोलिया करो। इफ फ्लेयरिंग इज डन, आ देखो, इफ फ्लेयरिंग इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आप पॉइंट नोट करना। इफ फ्लेयरिंग इज डन in the direction of electric field vector, then an antenna which is produced, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ sectoral E plane antenna ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। if flaring is done in the direction of magnetic field vector, ਠੀਕ ਹੈ, then ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ sectoral H plane ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਕੀ ਆ? ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਇਨ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਨ E ਚ ਵੀ ਤੇ H plane ਚ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਣਾ। दोनों डायरेक्शन दे विच। सो दो आ देखो, एच प्लेन विच भी, ई प्लेन दे विच भी। गल होई क्लीयर? समझ आ गई? ये पिरामिडल हॉर्न, हाँ जी रेक्टेंगुलर वेवगाइड दा दिखाया, ठीक है? तो here the flaring is done along both walls of the rectangular waveguide. Both kind of horns are used with rectangular waveguides. So हाँ, पता लग गया? कॉनिकल किया? कॉनिकल हमेशा सिलेंड्रिकल वास्ते, सर्कुलर वेवगाइड वास्ते। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? तो ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਪਰਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਹ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਨ। ਕੋਨਿਕਲ ਹੌਰਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ।
conical horn is thus a logical termination for a circular waveguide। तो conical horn ਬਣਦਾ ਕਿਦਾਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, conical horn ਨੂੰ ਅਸੀਂ circular waveguide ਦੇ ਵਿੱਚ terminate ਕਰ ਦੇਣਾ। Electromagnetic waves, EM waves leaving the mouth of the conical horn are no longer plane but spherical in nature। मैं पहले ही क्या cylindrical ਤੇ circular ਦੇ ਵਿੱਚ spherical ਜਾਂ circular wave fronts ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, रेक्टेंगल, हाँ पता लगा। EM waves leaving the mouth of the conical horn are no longer plane, इतने प्लेनर वेव फ्रंट्स नहीं पैदा होंगे पर स्फेरिकल इन नेचर होंगे। तो ड्यू टू दिस रेडिएटेड बीम इज नॉट डायरेक्टिव, तो प्लेन इस करके जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है वो ज़्यादा डायरेक्टिव नहीं होंदा है, प्लेनर ज़्यादा होंदा। इफ द फ्लेयर एंगल थीटा आ फिगर से दिखाया जितना इज टू स्मॉल रिजल्टिंग इन ए शैलो हॉर्न, then waveform leaving the horn will be spherical rather than plane and radiated beam will not be directed। It is therefore apparent that flaring angle should be an optimum value, तो ना वड्डा ना छोटा होना चाहिए, तो optimum value होनी चाहिए, ठीक नहीं, and closely related to the length as measured in wavelength, ठीक है। narrow mouthed horns with long flare section, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਰੋ ਮਾਊਥਡ ਹੌਰਨਸ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਲੰਬੇ ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਫਲੇਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸ਼ਾਰਪ ਬੀਮਸ ਦੈਨ ਸ਼ੈਲੋ। ਸ਼ੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਹੋਵੇ, and wider mouth horns tend to produce a spherical wave front which is not desirable। तो जिन्ना तदे ही है, हुण मेरी गल समझ आ गई, जिन्ना नैरो माउथ हॉर्न्स होगा ਉਹਦਾ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਮ ਸ਼ਾਰਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਸ਼ੈਲੋ। ਸ਼ੈਲੋ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੌੜਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਮਾਊਥ ਹੌਰਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨਰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਏ फोकसिंग मैकेनिज्म। आ पार्ट प्लेनर वेव फ्रंट कितना असी अचीव करते हैं यूजिंग ए फोकसिंग मैकेनिज्म वेयर ए कर्व्ड रिफ्लेक्टर और लेंस मे बी यूज्ड विद द हॉर्न। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਰਵਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਵਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਲੇਨਰ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। So horn time antennas do not provide very high directivity but is having a simple and rugged construction, thus makes them ideal as primary feed antennas for parabolic reflectors and lenses। हाँ बच्चों, वो कंटिन्यू हो जाऊगा या दोबारा होना पड़ेगा? है हाँ जी सर, हो जाना इदी हो जाएगा सर, कंटिन्यू हो जाएगा। ये कंटिन्यू हो जाएगा है? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ओके, चलो अपने को जिन्ना का टाइम रहता ला लेने। तो मैंने दोबारा चलो एनीवे, सो प्लेनर वेव फ्रंट्स अचीव कर सकते हैं फोकसिंग मैकेनिज्म ना, क्योंकि वो उपर रिफ्लैक्टर या लेंस लगा हो सकता। ऑन टाइम एंटीना डू नॉट ज़्यादा डायरेक्टिविटी नहीं वधिया, इस कर पर जी कंस्ट्रक्शन है सिंपल तो रगड़ आ। इसे करके इन्होंने असी प्राइमरी फील्ड एंटीना यूज़ करते हैं, खास करके किहदे वास्ते, ज़्यादा पैराबोलिक रिफ्लैक्टर विच प्राइमरी फील्ड एंटीना यूज़ करते हैं, या लेंस विच। द चॉइस ऑफ हॉर्न डायमेंशन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड बीम एंगल एंड डायरेक्टिव गेन। हॉर्न दी डायमेंशनस दी चॉइस किद्दां असीं डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करती है बीम एंगल किद्दां बनदा जां डायरेक्टिव गेन कितना सानूं चाहीदा। दीज डायमेंशनस इनवॉल्व स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेशियो ऑफ फ्लेयर लेंथ टू वेव लेंथ। तो एल जी फ्लेयर लेंथ है, तो लैम्डा जी वो वेव लेंथ है, ऑपरेटिंग वेव लेंथ, और एंगल फ्लेयरिंग लेंथ है। समझ आ गई? यह पॉइंट नोट किया? हेलो हाँ जी सर। हाँ, हुण जिन्ना टाइम साडे कोल रहिंदा असीं देख लैंदे आ, क्योंकि मैनूं लगदा हुण इहदे विच हॉर्न एंटीना कैन बी डिजाइनड यूजिंग हॉर्न डायमेंशनस। असीं हॉर्न एंटीना नूं किदां डिजाइन कर सकते हैं? हॉर्न डायमेंशनस के उहदे विच ਉਹਦੀ ਆ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਲੈਂਥ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਤੇ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਐਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਆ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਹਾਈਟ h ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ h/2 ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਵ ਜੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਰਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਐਲ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਐਲ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਯੈਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਲ। ਫੇਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ ਜੇ ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਯੈਸ, ਫੇਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਐਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਂਡ ਤੱਕ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਤੇ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੇਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਲਟਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨਸ ਜਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਜਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਹੀ ਆ। ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਮੈਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਮੈਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAB, OAB ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ OAB, OAB ਇੱਥੇ cos ਥੀਟਾ ਲੱਭਣਾ। cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਆ 90 ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ OA, OA ਕਿੰਨਾ L ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ OB ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ L ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? cos ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ tan ਥੀਟਾ ਕੱਢਾਂ, tan ਥੀਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ? AC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ tan ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਓ। tan ਥੀਟਾ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ h/2, ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ L, ਆ ਲੈ h/2/L, 2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ h/2L ਆ ਗਿਆ। ਆ cos ਥੀਟਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ tan ਥੀਟਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ cos ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ tan ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ